we are starting today with solution chapter. Here is the whole summary and brain map of solution chapter. Starting with what is solution. Solution is nothing else but a homogeneous mixture of solute and solvent. Solute is a component which is having less quantity or less concentration in any solution, and solvent which is having more concentration or more quantity in solution. If you are confused with the term concentration, it is nothing other than a measuring quantity, a measuring entity, या हिंदी में बताऊं तो मात्रा. कंसंट्रेशन मतलब मात्रा कि क्या चीज कितनी मात्रा में किसी दूसरे कम एक सॉल्यूट किसी दूसरे सॉल्वेंट में कितना घुला हुआ है, कितना डिसॉल्व्ड है. यहाँ से कंसंट्रेशन निकालने के कितने तरीके हो सकते हैं. कंसंट्रेशन निकालने के बहुत सारे तरीके हैं. डिपेंड करता है कि हम किस टर्म्स में या किस बेसिस पे हम उसको कैलकुलेट कर रहे हैं. अगर जूम किया जाए इस पे तो ये देखिए, हियर अगर हमारे पास में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अवेलेबल है या हमारे पास में मास भी अवेलेबल है, सिर्फ मास ऑफ सॉल्यूट आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं मोलारिटी से और मोलालिटी से. दीज टू आर मेन फॉर्मूलाज फॉर कैलकुलेटिंग concentration of any solution. If the solution is heat sensitive or temperature sensitive, that means if it changes its concentration with temperature, we will not adopt the formula of molarity for the calculation of number of moles of solute or concentration. The main reason is molarity is nothing other than number of moles of solute upon volume of solution in liters, and we know with increase in temperature the volume of substance changes. So if volume of substance changes, then how is it possible to get the correct concentration of any compound? Therefore, in that case, we will adopt the formula of molality, which states that it is number of moles of solute divided by number of moles of mass of solvent in kgs. If you are confused with number of moles, we'll see. How much is 1 mole? Mole is nothing other than a measuring quantity. One mole is equals to gram molecular mass or molecular mass in grams. That means अगर मैं आपको एक वेइंग मशीन दे देता हूँ और बोलता हूँ कि bring 1 mole of NaCl for me, ओके. तो अगर अपने को 1 मोल ऑफ NaCl चाहिए तो आपको पता है कितना में आप लेके आएंगे. सीधा सीधा इसका मोलर मास कैलकुलेट कीजिए ना. Na and Cl 23.3 is molar mass of Na and 35.5 is molar mass of Cl. Add up 58 grams. That means जब आपको 1 मोल ऑफ NaCl मंगाया जाए तो आप कितना ग्राम लेकर आएंगे उसमें 58. इट इज जस्ट लाइक जब आपको 1 दर्जन केला मंगाया जाए तो आप 1 दर्जन में 12 बनाना से खरीद के लाएंगे, बिल्कुल वैसा ही. तो मोलर मास अलग अलग कंपाउंड्स का अलग अलग हो सकता है. जैसे NaOH का 23 प्लस 16 प्लस 1, दैट मीन्स इट इज इक्वल टू रफली इक्वल टू 40 ग्राम. सो 1 मोल ऑफ NaOH होल्ड्स 40 grams. That's why I'm saying कि 1 mole of any compound is equals to its gram molecular mass. In terms of number of particle, it is equals to Avogadro number. Okay, in terms of number of particles, it is equals to Avogadro's number, that is 6.022 into 10 to the power 23. That means 1 mole of any particle holds 6.022 into 10 to the power 23 particles. Roughly explaining, जो आप 58 ग्राम NaCl लेकर के आए थे on my behalf, so इस 58 ग्राम NaCl में कितने पार्टिकल होंगे? 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स. वही आप क्या लाए थे? 40 ग्राम ऑफ NaOH. इसमें भी कितने पार्टिकल्स होंगे? 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स. दैट मीन्स अगर आपका वेइंग मशीन खराब हो जाए तो उस केस में आपको क्या करना है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स काउंट कीजिए. ऑल्दो इसको काउंट करने में ईयर्स लगेंगे, बट कीजिए. ओके. सो 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड होल्ड
how many particles? 6.022 into 10 to the power 23 particles, which is equals to 8 Avogadro's number. Now if the solute and solvent is in gaseous state, in that case 1 mole of any gas at STP, standard temperature and pressure. Standard temperature is 0 degree Celsius, standard pressure is 1 atm. So at standard temperature and pressure 1 mole of any gas is equals to 22.4 liters. Okay, अब यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना सिखा रहा हूँ। जैसे मैं आपको बोला 58 ग्राम NaCl है मेरे पास में, तो इसमें कितने मोल है आप जानते हो। 1 मोल ऑफ NaCl में कितने होंगे, ग्राम मोलिकुलर मास के बराबर। और ग्राम मोलिकुलर मास कितना होता है NaCl का, 58 ग्राम। तो 58 डिवाइडेड बाय 58 व्हिच इज रफली इक्वल्स टू 1 मोल। फाइन। तो इससे क्या समझ में आया, 58 ग्राम में आपको दिया था मास कि इतना मास मेरे पास अवेलेबल है। सो गिवन मास डिवाइड्स इट्स मोलर मास, इससे क्या मिल जाएगा आपको, नंबर ऑफ मोल्स। और ये कहानी इसलिए बताई जा रही है कि अभी जो पीछे ब्रेन मैप में इसमें आपको समझाया गया था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ इट्स सॉल्वेंट इन केजी। आते हैं वापस मोल फ्रैक्शन। जब अपन नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना सीख गए हैं तो फ्रैक्शन हम किसी भी चीज का कैसे निकाल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, और जिस पार्टिकल का हम लोगों को फ्रैक्शन निकालना है उसको ऊपर रख दीजिए न्यूमरेटर पे। जैसे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने बोला, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कंबाइनली नोन एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। Here XB, A stands for number of A stands for number of moles of solute, mole fraction of solute. XB stands for mole fraction of solvent. In my brain map, every A represents solute and every B represents solvent. Mole fraction of solute and solvent is roughly equals to 1. So अगर आपने कैलकुलेट कर लिया है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो आप उसको 1 से माइनस कीजिए, ऑब्वियस सी बात है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। इससे ये समझ में आता है हमें कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन नेवर एक्सीड 1, उससे 1 से ज्यादा वैल्यू कभी नहीं आएगा। एंड इफ यू आर सॉल्विंग एनी न्यूमेरिकल एंड यू आर गेटिंग आंसर मोर देन 1, व्हिच मींस योर आंसर इज रॉन्ग। इट इज अ मेथड टू चेक योर ओन आंसर्स ओनली इन एग्जाम्स। नाउ सम फ्यू मास परसेंटेज, ये अगर ना बने तो फिर क्या बात है, खुद का परसेंटेज निकालना सब जानते हैं, मार्क्स ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। सो दैट्स व्हाई हियर मास ऑफ सॉल्यूट, कितना परसेंटेज सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में किसी सॉल्यूशन में अवेलेबल है। सो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ होल सॉल्यूशन। अब परसेंटेज चाहिए भैया तो 100 से इंटू कर दो, जो आंसर आएगा परसेंटेज में। वॉल्यूम परसेंटेज, जहाँ पे मास था वहाँ पे वॉल्यूम लगाया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। एंड फाइनली पार्ट्स पर मिलियन। ये एक ऐसा फॉर्मूला है या एक ऐसा कंसंट्रेशन मेजर करने का टर्म है जो बहुत छोटी क्वांटिटीज के लिए बनाया गया है। कितनी छोटी क्वांटिटीज, जो लेट अस टेक एन एग्जांपल कि किसी आयुर्वेदिक प्लांट में कोई एंटीऑक्सीडेंट अवेलेबल है, तो कितना अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा मात्रा में या बहुत थोड़ा। सबको पता है बहुत थोड़े मात्रा में अवेलेबल रहता है एंटीऑक्सीडेंट। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए, जैसे अपने घर वाले बोलते हैं ना लाखों में एक अपना बच्चा, वैसे ही लाखों में एक है सॉल्यूट पार्टिकल। इसलिए यहाँ पे क्या किया गया है, पार्ट्स पर मिलियन, यानी हर 10 लाख में एक सॉल्यूट पार्टिकल। 10 लाख सॉल्वेंट्स के बीच में एक सॉल्यूट पार्टिकल का कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए हम यूज करते हैं पार्ट्स पर मिलियन। अब इनटू हम लोग को कितना मिलियन पार्टिकल्स दिया पता नहीं है, सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 to the power 6।